کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں دنیا کا سب سے بڑا مقابلہ جنگ کے میدان میں نہیں بلکہ ترقی کی رفتار میں ہو رہا ہے؟ جاپان، چین، سنگاپور اور یہاں تک کہ بنگلہ دیش سب نے اپنی ترقی کا راز کیا رکھا؟ صرف قدرتی وسائل نہیں بلکہ بہتر منصوبہ بندی اور مضبوط نگرانی۔ تو پھر پاکستان کیوں پیچھے رہ گیا؟ بنگلہ دیش جو کبھی پاکستان سے پیچھے تھا آج ترقی کی دور میں بہت آگے نکل چکا ہے۔ ان کی کامیابی کا راز کیا ہے اور پاکستان میں کیا غلط ہو رہا ہے؟ Pakistan's economic landscape has taken a significant turn. Inflation rate rising to 29.45% in the final days of Ramadan. This is to protest a rise in electricity costs and new taxes imposed on shop owners. One roti costs a staggering 25 Pakistani rupees. Inflation is well above 20%, the highest in South Asia. Not have even basic medicines like Disprin, Panadol, Calpol. یہ وہ سچائی ہے جو ہم جاننا تو چاہتے ہیں لیکن شاید سمجھنے سے قاصر ہیں۔ کیا پاکستان دوبارہ ترقی کی راہ پر چل سکتا ہے اور اگر چل سکتا ہے تو وہ کیسے؟ جانتے ہیں اس ویڈیو میں پاکستان کس طرح زوال پذیر ہو رہا ہے اور کیسے ایک منظم اور جدید نظام ترقی کی رفتار کو بدل سکتا ہے۔ چمن میں رنگے بہار اترا تو میں نے دیکھا، نظر سے دل کا غبار اترا تو میں نے دیکھا، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ دنیا جب سے جدید دور میں داخل ہوئی ہے تب سے دنیا کے ممالک میں مقابلہ جنگوں کے میدانوں میں نہیں بلکہ ترقی کی رفتار میں ہو رہا ہے۔ جن ممالک میں ترقی کی رفتار بہتر ہے یا تسلی بخش ہے وہاں انسانی زندگی میں خوشحالی ہے اور تنازعات سے یہ ممالک دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان اس کی بہترین مثال ہے۔ حالیہ دہائیوں میں چین، جنوبی کوریا، سنگاپور، ملیشیا اور کئی دیگر ممالک کی مثال دی جا سکتی ہے۔ یہ سارے ممالک قدرتی وسائل سے نہیں بلکہ بہتر انتظام سے آج ترقی یافتہ ہے۔ بہترین انتظام سے مراد منصوبہ بندی اور اس کے مطابق کام اور کام کی نگرانی ہے۔ جو ممالک دنیا میں اس وقت ترقی نہیں کر رہے ان میں ان تینوں شعبوں کی کمی آپ کو نظر آئے گی۔ بنگلہ دیش گزشتہ ایک دہائی پہلے ان ممالک میں شامل تھا جہاں ترقی کا گراف نیچے جا رہا تھا، مگر گزشتہ 10 برسوں میں جب سے انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کی، اس کے نتیجے میں کام کا آغاز کیا ہے اور اس کام کی سائنسی بنیادوں پر نگرانی کی ہے تو وہ تیزی کے ساتھ ترقی کے راستے پر گامزن ہے۔ ان کے منصوبہ بندی کے ماہرین نے 5 سالہ اور 20 سالہ کا جو پلان بنایا تھا وہ اس پر کاربند ہے، جس کے نتیجے میں ابتدائی 4 برسوں میں ان کی اکانومی بیرون امداد اور قرضوں سے نکل کر خود کفالت کی راہ پر ہے۔ ان کی فی کس آمدنی میں 4 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والے لوگوں کی تعداد میں تیزی کے ساتھ کمی ہو رہی ہے اور ان کے شہروں میں مواصلات اور دیگر شعبے میں بہت تیزی کے ساتھ ترقی اور بدلاؤ آ رہا ہے۔ جبکہ بنگلہ دیش کے مقابلے میں پاکستان چند برس تک بہتر پوزیشن میں تھا۔ پاکستانی روپے کی قدر بنگلہ دیشی ٹکے کے مقابلے میں کافی بہتر تھی۔ پاکستانی بینکوں میں ڈالر کا ذخیرہ ان سے بہتر تھا اور شرح نمو بھی ان سے کہیں زیادہ بہتر تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی شرح نمو پاکستان سے بہت بہتر ہو گئی ہے۔ ٹکا روپے کے مقابلے میں بہتر ہو گیا ہے اور اس کے پاس پاکستان کے مقابلے میں زر مبادلہ کے ذخائر 10 گنا سے زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ بنگلہ دیش میں کرپشن کی شرح بہت زیادہ حد تک کم ہو گئی ہے۔ صرف ایک ہی فرق ہے کہ بنگلہ دیش نے اپنی توجہ منصوبہ سازی اور بہتر انتظامی ترتیب کی جانب مبذول رکھی اور پاکستان میں اس کے برعکس کام ہو رہے ہیں۔ منصوبہ بندی کیوں ضروری ہے؟ اس کی وضاحت ماہرین یہ کرتے ہیں کہ جدید علمی اور سائنسی دور میں درست منصوبہ کرنے سے پہلے اپنے وسائل کا درست استعمال کیا جا سکتا ہے اور نئے وسائل پیدا کرنے یا مہیا کرنے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے اور انتظام بہتر بنانے سے مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن ایسا کرنا تب ممکن ہوگا کہ آپ ترقی کے اس عمل میں کتنا بہترین نگرانی اور جائزے کا نظام رائج کرتے ہیں۔ مانیٹرنگ اینڈ ایولیوشن کی وجہ سے جو بھی منصوبہ ہو اس کی عملی تکمیل ممکن ہو اور مستقبل کے لیے منصوبہ بندی میں سہولت رہتی ہے۔ پاکستان کو 60 کی دہائی میں جو معاشیات کے ماہرین ملے ان کی منصوبہ بندی اور انتظام کی وجہ سے پاکستان نے ترقی کا سفر شروع کیا تھا اور اس کے نتیجے میں بڑے بڑے ڈیم بنے اور کراچی میں ایشیا کا سب سے بڑا لوہے کا کارخانہ لگا۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں انسان ترقی کی شرح گزشتہ برس کے مقابلے میں کم رہی۔ پاکستان میں اقتصادی ترقی صرف امیر لوگوں کی گرد گھومتی ہے اور سرمایہ کاری کے بہترین مواقع بھی انہی کے لیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے ترقی UNDP کی جانب سے 2015 کے لیے جاری کی جانے والی انسانی ترقی کے سالانہ رپورٹ بہت سے پاکستانیوں کے لیے شدید تشویش کا باعث ہو سکتی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں انسانی ترقی کی شرح گزشتہ برس کے مقابلے میں کم رہی ہے۔ دنیا کے 188 ملکوں میں سے پاکستان کا انسانی ترقی کے حوالے سے 147واں نمبر ہے۔ پاکستان گزشتہ برس کے مقابلے میں بھی 1 نمبر پیچھے چلا گیا ہے۔ انسانی ترقی کے عالمی جائزے کا آغاز 1990 میں ایک پاکستانی ماہرین معیشت ڈاکٹر محبوب الحق کے سربراہی میں کیا گیا۔ اس جائزے کے مطابق ملک کی ترقی کو ان کی اقتصادی ترقی کے ذریعے نہیں
बल्कि उन मुल्कों में रहने वाले लोगों को मेयारी जिंदगी और लोगों की सलाहियतों की बिना पर परखा जाना चाहिए। ये जायजा उन मुल्कों के लोगों की औसत उम्र, तालीम, आमदनी और मेयारी जिंदगी मद्देनजर रखकर तैयार किया जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 15 बरस या उससे ज्यादा उम्र के अफराद में बेरोजगारी की शरह 48% के करीब है, जबकि मुल्क में 8 करोड़ 30 लाख से ज्यादा अफराद गुर्बत के शिकार हैं। पाकिस्तान इंसानी तरक्की के शोबे में बहुत पीछे क्यों? इस सवाल के जवाब में बहुत से इक्तिसादी माहिरीन का ख्याल है कि दहशतगर्दी की जंग, कुदरती आफात, भारी कर्जों के बोझ और महसूलात की वसूलियों में कमी की वजह से पाकिस्तान इंसानी तरक्की के लिए दरकार रकूम खर्च करने के काबिल ही नहीं था। इक्तिसादी उमूर के एक पाकिस्तानी माहिर मंसूर अहमद बताते हैं कि पाकिस्तान अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा इंसानी तरक्की के शोबों पर खर्च करने से कासिर रहा है। तरजीहात के दुरुस्त न होने और करप्शन की वजह से पाकिस्तान अपनी ह्यूमन रिसोर्स को बेहतर नहीं बना सका, इसलिए सेहत, तालीम और दीगर शोबों में अपने हमसाया मुल्कों में भी पीछे रह गया है। पाकिस्तान के एक मुमताज माहिर इक्तिसादियत डॉक्टर अकमल हुसैन की राय में पाकिस्तान में इक्तिसादी तरक्की सिर्फ अमीर लोगों की गिरफ्त मिलती है। DW से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान में अमीर लोगों को ही सेहत और तालीम की मायारी सहूलतें मिलती हैं, अमीरों को ही नौकरियां मिलती हैं और अमीरों को ही सरमायाकारी के बेहतर मौके मुयस्सर आते हैं। इक्तिसादी तरक्की की गैर मुसावी तकसीम की वजह से आज़ादी के 74 वर्षों बाद भी 40% पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको रोजाना 2100 कैलोरीज या पेट भरकर खाना नहीं मिल रहा। हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली पब्लिक सर्विसेज इस इलीट को मिल रही है जो टैक्स भी नहीं देते। इस पर सितम यह है कि बड़े पैमाने पर फैल जाने वाली करप्शन ने हालात मजीद खराब कर दिए हैं। रेलवे और PIA ने अपने दौरे ज़र्री देखा, बैंकिंग का निज़ाम जदीद खुतूत पर इस्तेवार हुआ, मुल्क में सनअती यूनिट लगे, मगर जो काम वो नहीं कर सकी वो था निगरानी और जायजे का कोई अमली निज़ाम बनाना और मुस्तकबिल के मंसूबों की राह हमवार करता। पाकिस्तान में मंसूबा बंदी के एक कौमी और 4 सूबाई इदारे हैं, प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सूबाई प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के शोबाजात, मगर ये इदारे सियासी तौर पर तरक्याती बजट के बंदरबाट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इन इदारों ने पाकिस्तान का मुकम्मल इक्तिसादी सर्वे ही नहीं कराया और न ही अपने वसाइल की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन की, न उनके पास वसाइल की तकसीम का कोई अमली निज़ाम है और जो तरक्याती सरमाए ये लगा रहे हैं वो करप्शन की नजर हो जाता है और काम अगर हो भी जाता है तो उनका मायार इतना नाकिस होता है कि उसकी अमली फायदा भी नहीं होता। ये इदारे अब तक इस बात पर मुत्तफिक ही नहीं हो सके कि उनके अगले 10 या 15 वर्षों के लिए क्या मंसूबा बंदी है। जितना पैसा सिर्फ लाहौर शहर पर लगा उसका निस्ब भी पूरे जुनूबी पंजाब पर नहीं लगा, इसलिए जुनूबी पंजाब में तरक्की का कोई निशान नजर नहीं आता। इसी तरह फाटा की वज़ला जो अब तक खैबर पख्तूनख्वा में है वो खरबों रुपए कागजों में खर्च किए गए, मगर अमलन इलाकों में जिंदगी की कोई सहूलत मैसर नहीं है। यही हाल अंदरूनी सिंध का है जहाँ कागजों पर खरबों का बजट खर्च किया गया मगर अमलन नतीजा सिफर है। बलोचिस्तान भी इसकी तफसीर पेश कर रहा है। पाकिस्तान के अपने वसाइल भी बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान ने गुज़िश्ता बरसों में 130 अरब डॉलर से ज्यादा के बैरूनी कर्जे भी लिए हैं और मौजूदा सूरत हाल ये है कि इन कर्जों पर हर सूद की अदायगी के लिए मजीद कर्ज लिए जाएंगे, जबकि अमलन देखा जाए तो पाकिस्तान में कुछ भी कोई तरक्की या पेशरफ्त दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता दिहाइयों में कोई मंसूबा बंदी नहीं की गई और न ही निगरानी और जायजे का कोई अमली इंतजाम किया गया, इसलिए पाकिस्तान में तरक्की नहीं हो रही। पाकिस्तान में हुकूमत के साथ साथ गुज़िश्ता कुछ दिहाइयों से NGOs ने भी खरबों रुपए आलमी इदारों से लेकर कागजों में खर्च किए हैं। उनके कामों का आप सिर्फ उनके शाया करदा डोनर्स के जमा करदा रिपोर्टों में देख सकते हैं। अमली तौर पर उनका वजूद भी आपको कहीं नजर नहीं आएगा। आप वर्ल्ड बैंक की गुज़िश्ता 20 बरस का जायजा रिपोर्टों को उठाकर पढ़ लें, आप हैरान रह जाएंगे कि जिन कामों का तज़किरा इन रिपोर्ट्स में किया है वो कहाँ है। पाकिस्तान में सिर्फ मंशियात की लानत खत्म करने के लिए खरबों रुपए खर्च किए गए। आप जिस भी शहर में आप बाहर निकल के देखें कि कोई काम आपको नजर आता है। मंशियात के इस्तेमाल में 10 गुना से ज्यादा इजाफा हो गया है और मंशियात की आदी अफराद पाकिस्तानी माशरे की बोसूदा लाश कंधे पर उठाए आपको हर गंदगी के ढेर पर पड़े नजर आएंगे। यहाँ हजारों की तादाद में खैराती इदारे आपको मिलेंगे जो दोनों हाथों से गरीबों को लूट रहे होते हैं। आप खून के टेस्ट इन खैराती इदारों से करवाएं या आपसे सरकारी अस्पतालों के मुकाबले में 10 गुना से भी ज्यादा कीमत वसूल करेंगे। ये सब सिर्फ इस वजह से है कि हमने ना मंसूबा बंदी की और ना ही निगरानी और जायजे का बंदोबस्त किया। क्या ये मकाम हैरत नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी तालीमी इदारे में निगरानी और जायजे का मजमून ही नहीं और इस पर किसी भी यूनिवर्सिटी कोई डिग्री देती ही नहीं है और इस पर कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं है, तो जाहिर है कि इसके माहिरीन कहाँ से आएंगे। हाँ, सरकारी इदारों में इस मकसद के लिए खानापुरी के तौर पर कुछ लोगों को भर्ती किया जाता है जिनको इसकी अलिफ कभी नहीं पता होता। वो दफ्तर में बैठकर ठेकेदारों से चंद रुपए के फॉर्म भरकर दस्तखत करते हैं और मुल्क की तरक्की के ताबूत में कील ठोक देते हैं। दुनिया की तरक्की का सबसे बड़ा राज यह है कि तरक्की करने वाले ममालिक ने निगरानी और जायजे के लिए एक मुनज़्ज़म और जदीद निज़ाम बनाया। उन्होंने उसको बाकायदा यूनिवर्सिटी से एक लाजमी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया, उसके लिए जदीद आलात और ज़राए से मदद हासिल
की। इस तरह उन्होंने अपना सरमाया जाया होने से बचाया और वक्त पर तरक्की की रफ्तार को तरतीब से जारी सारी रखी, जिसके नतीजे में उनके मुमालिक तरक्की करते चले गए। यहाँ तरक्की के कामों के जो डिपार्ट्स बनाए गए हैं वो सबसे ज्यादा करप्शन करते हैं। PWD, CNW, इरिगेशन, NHA ये सब महकमे अपने फराइज अदा करने में हर तरह नाकाम होते हैं। इसकी एक ही वजह है कि इन सब पर नजर रखने और जायजा लेने के लिए कोई अमली और साइंसी निजाम है ही नहीं, जिसकी वजह से इन इदारों ने तरक्याती काम करने की जगह कौमी वसाइल का ज़िया किया। हैरत इस अमर पर है कि हायर एजुकेशन कमीशन ने भी मुल्क की जरूरियात का कोई सर्वे नहीं कराया और उसके मुताबिक अपना तालीमी निजाम तरतीब नहीं दी। अब जब पूरी दुनिया डिजिटल हो चुकी है और सब कुछ मशीनों के कंट्रोल में आ चुका है, इस दौर में भी हम अपनी करप्शन के लिए किसी भी दफ्तर और निजाम को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं ले जा रहे हैं। इसलिए अगर ऐसा करेंगे तो वो लोग जो गुज़िश्ता बोसीदा फाइलों के निजाम का सहारा लेकर करप्शन कर रहे हैं, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। हमारे पास NHA की कुल आमदनी का कोई हिसाब ही नहीं है, इसलिए कि इनका पूरा निजाम डिजिटल सिस्टम पर नहीं है। पाकिस्तान के तरक्की ना करने के पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह निजाम का ना होना है। अगर हमने तरक्की करनी है तो निगरानी और जायजे का वो निजाम जो दुनिया में राइज है उसे मुकम्मल प्रोटोकॉल समेत यहाँ भी राइज करना होगा और ये काम हमें हंगामी बुनियादों पर करना होगा, वरना बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। इसलिए कि दुनिया जिस तेजी के साथ तब्दील हो रही है उसमें हम कहीं नजर नहीं आ रहे। अगले चंद बरसों में जिनके पास डिजिटल निजाम होगा उनको पैसे मिलेंगे और जिनके पास नहीं होगा वो भूखे मर जाएंगे।